coach of the Pakistan Test team. My name is Joel Haley, representing Career Cricket Podcast. Hope all is well. First thing first, can I get your take on the match? You know, the result didn't go Pakistan's way, but what is your view of the game itself from a Pakistan perspective? I think if you talk about this test match, I think both team playing a really good cricket. First 3 days, I think the last session of the test match of the third day, I think the match little bit take on with Shema Joseph. I think the way he batted, scored 43 runs, so that's why the match little bit far away for us. But the credit goes to the both the team. They playing really good cricket, and special credit to the West Indian fast bowler. They bowled very well in the fourth inning. Okay, I understood that Shan Masood battled in this injury. Do you think that hampered your plans? Yeah, I think if you talk about Shan Masood, then he scored 100 in the first inning. So he got injured in while he's batting. So little bit cost us for the second inning. That's why he couldn't bat on his proper number. How, what did you think about the pitch? I think First time you using playing a test match here. Yeah, I think pitch is very great pitch for the test matches wise. I think very fantastic pitch for the bowlers and batsmen. I think credit goes to the groundmen. They made a very good pitch for this test match. Okay, and lastly for me, a few days before the second test, I understand two players will be coming in, Abdullah Shafiq and Saud Shakil. Yeah. Will they be ready for the test match or Yeah, we will decide before the next match who is playing. Okay, thank you. Yeah, what changes do you make ahead of the next test? We will tell you when we do this toss. We will tell you later. Okay. What positives do you take from here? I think it's very much positive, about Mohammad Abbas bowling. I think our bowler bowled really well, and also Shan Masood played a really good inning, and Imamul Haq and Babar Azam scored 50 of the last inning. So that's a positive thing for me. Hopefully, we will bounce back, inshallah, in next match. So what point do you think it ran away? I think, as I earlier said, the first 3 days, we both team playing a really good cricket. I think the Shema Joseph inning scored 43 runs. That's a difference for the last inning. देखिए, अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच की बात करें तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारा तीसरे दिन का सेशन था, आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस किया. अगर हम वहाँ पे उनकी वो पार्टनरशिप नहीं लगती, आखिरी जो पार्टनरशिप लगी है 8वीं विकेट पे, अगर वाली पार्टनरशिप हम पकड़ लेते, उसके अलावा जो हमारी पहली इनिंग में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अच्छी खासी अगर वहाँ पे लीड ले लेते 50 और रन की, तो आई थिंक मुझे लगता है वो ज़्यादा हमें वहाँ पे नुकसान हुआ थोड़ा. इस मैच में क्या आपको फील हुआ कि आपने एक कम बैटर के साथ गया है, क्या एक स्पिनर जो है वो आपने एक प्रॉपर स्पिनर खिलाया तो आपके पास अगर सामान भी थे, तो क्या आपको ये और भी कहीं किसी जगह पे ये फील है? देखें, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पिच को रीड किया, आई थिंक वो बहुत सही रीड किया, और हमें लगता था कि यहाँ पर हमें पूरे 5 बॉलर चाहिए और हमें फास्ट बॉलिंग यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से हम एक्स्ट्रा बॉलर के साथ गए. आई थिंक ये कि हमें लगता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था. फास्ट बॉलिंग को बड़ी इस पिच ने बड़ी हेल्प दी. अगर आपने ओवरऑल देखा तो इस मैच में फास्ट बॉलर नहीं जो है वो दोनों टीमों की तरफ से आउट किया. आई थिंक हमारा फास्ट बॉलर का साथ जाना अच्छा डिसीजन था. आई थिंक ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग की तरफ से हमें थोड़ी सी मायूसी है. होपफुली कि इंशाल्लाह एज अ बैटिंग यूनिट जो है हम अच्छा परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मैच में. बैटिंग के ऊपर ही ये सवाल है कि पिछले कुछ अर्से से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बैटिंग टीम जो है स्टार्ट बहुत अच्छा करती है, फिर एक जब में क्लैप्स आता है, चाहे ओडीआई या टेस्ट हो, तो इसकी क्या कोई रीज़न आपने आइडेंटिफाई किया है कि किस वजह से कोई माइंड सेट का इशू है या क्या? आई थिंक देखिए, हमें बैट्समैन हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. अगर मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूँ, आई थिंक इमाम बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे. आई थिंक अगर वहाँ पे वो लंबी इनिंग करता, थोड़ा सा और अपने आप को पेशेंस पे रखता, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा अगर हम पहली इनिंग में बेहतर लीड ले लेते तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता. और सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है. हम लोगों ने चीज़ें आइडेंटिफाइड भी की हैं, बैट्समैनों से बात की है, लेकिन ये कि हमारा बहुत जल्दी क्लैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. एक से लास्ट क्वेश्चन के अगले समाज को डेब्यू करवाया गया और सेकंड इनिंग में देखा उसने कोई ओवर भी नहीं किया और बैटिंग में भी वो उस तरह से यूज़ करने और पहली इनिंग में ओवर बड़े कम किए गए, तो डू यू स्टिल कंसीडर हिज सिलेक्शन इन द प्लेइंग 11?
नहीं बिल्कुल देखें उनकी सिलेक्शन जो है बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो पिच की कंडीशन थी वो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे स्पिनर भी जो है ना वो बिल्कुल काम में आता, लेकिन जिस तरीके से मैच आप देखें कि फास्ट बॉलरों ने ज़्यादा बॉलिंग की है यहाँ पर और फास्ट बॉलरों ने ही आउट किए हैं, क्योंकि हमें ये लगता था कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी स्पिनर की तो वो ज़रूर हमारे गेम में आएगा, लेकिन ये कि ओवरऑल हमारा लगता है कि जो हमने 4 पेसर और एक स्पिनर के साथ गए वो हमारा एज टीम जो है वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था।